دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے، اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھا میں عملاں والے تو پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے، لکڑی سے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں، وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس سے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟
हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें हैं, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कुफार की कब्रें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ज़रा हदीस के लफ्ज़ों पे गौर करना, हुजूर फरमाने लगे अगर मुझे डरना ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं तुम्हें सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है। तुम्हें दुनिया में रह के मैं सुनाता, पर डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ही ना दो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने गुलामों की तरफ नजर फरमाई, ये बात कह के कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया, चलो भाई दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब कहने लगे हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब कहो कि हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो, सारे ये कहो कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि ए अल्लाह, हम दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कह के, ये बात बतला के हमें समझा दिया, हमें कायल फरमाया महबूब ने। तो याद रखना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है। अपने मामलात पर गौर करें। हमारा ना, वो किसी शायर ने कहा था कि मरने के बाद मुझको 2 गज ज़मीन जो मिली तो देखो बाद मरने के ही हम जागीरदार हो गए। तो असल तो जागीर वही है और तय है। जितना मर्जी एसी लगा के कमरा ठंडा कर लें, टाइल पत्थर लगा के उसको आप साफ सुथरा कर लें, और आप उठने की भी तकलीफ ना करें, रिमोट कंट्रोल के साथ हर चीज़ अपने कमरे की आप कंट्रोल कर लें, पूरा हवादार कर लें, लेकिन आप बचेंगे तब ना जब कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। अगर वो जन्नत के बागों में से बाग नहीं बनती तो फिर फायदा नहीं है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया, जब मैयत को दफन करके फारिग हो जाओ तो उसकी कब्र पर खड़े रहो। खुद हुजूर भी कब्र पर खड़े रहते दफन करने के बाद, और फरमाते इसके साबित कदम रहने की दुआ करो, इसलिए कि अब इससे सवाल जवाब होंगे, अब फरिश्ते इसकी कब्र में आएंगे, अब इससे पूछेंगे, अब इसके साथ वो इम्तिहान होगा, तो इसके लिए दुआ करो, कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगो। एक हदीस में फरमाया कि इतनी देर दुआ मांगो, इतनी देर दुआ मांगो कि जितनी देर ऊँट ज़िबा करके, खाल उतार के, गोश्त बना के, ऊँट ज़िबा करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ऊँट ज़िबा करके, खाल उतार के, गोश्त बना के बांट देते हो, इतनी देर मरने वाले की कब्र पे खड़े रह के दुआ मांगा करो, क्योंकि अब फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा। तो अज़ाब कब्र, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस है कि एक बंदे को सिर्फ 1 कोड़ा मारा गया था कब्र में, 1 कोड़ा, 1 दुर्रा, तो उसकी सारी कब्र में आग भड़क उठी थी। तो पूछता है कि ये 1 कोड़ा मुझे क्यों मारा गया? तो उन्होंने कहा एक वजह तो ये थी कि तू पाकी पलीदी का ख्याल नहीं करता था, और दूसरी वजह ये थी कि एक दफ़ा एक मजलूम ने तुझसे कहा था मेरी मदद कर, और तू मदद करने पे कादिर था, तेरे अंदर हिम्मत थी, पर तू उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हमारा मशहूर फिक्र है ना कि सानू की लगे, पराई लड़ाई पुराई आग नूं असीं घर क्यों लियावीए। तो वो जो हमारा खास मामला है ना कि किसी की मदद नहीं करनी, वो हमें ख़राब करती है, वो हमें ख़राब करती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं। हम मदद करने पे कादिर होते हैं पर किसी मजलूम की मदद, तो 1 कोड़ा लगा तो पूरी कब्र में आग भड़क उठी। अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगी जाए, डरा जाए, और आखिरत के लिए, कब्र के लिए तैयार। कुरान मजीद ने कहा वइज़ल कुबूर बुस्सिरत, जब कब्रें कुरेदी जाएंगी ना तो अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, फिर हर जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। मेरे अजीज़, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए फ़िक्र करें, तैयारी करें।
मुल्ला रूमी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं और बड़े शानदार अंदाज में बात समझाते हैं। वो कहते हैं मिस्र के अंदर ना एक रिवाज था कि वो साल के आखिर में, समझ ले जिलहज के आखिरी दिन, या जिस तरह आजकल लोग जनवरी फरवरी से काम चलाते हैं, तो वो दिसंबर की आखिरी तारीख को ना पिछले बादशाह को मुअत्तल कर देते थे और यकम तारीख को वो जाके दरिया के किनारे खड़े होते थे तो कश्ती आती थी, जो पहला आदमी उतरता था उसे बादशाह बना लेते थे। पूरा साल उसकी बात मानते और साल के आखिर में जाके फिर उसको जंगल में, जहाँ जंगल में दरिंदे थे, झाड़ियाँ थी, खौफनाक जगह थी, वहाँ जाके छोड़ आते थे, दरिंदे उसे फाड़ डालते। तो एक साल एक दानिशमंद आदमी उतरा, वो तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा बादशाह है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो बादशाह हूँ तो क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हमारा उसूल है, पूरा साल तेरी बात मानेंगे, साल के बाद जंगल में छोड़ आएंगे। कहने लगा साल तो बात मानोगे ना? ने कहा। कहने लगा अच्छा फिर सबसे पहले मुझे वो जंगल दिखाओ जिसमें तुमने आखिर में छोड़ के आना है। पहले मकान के पहले सोसाइटी में घर के पहले कब्रिस्तान की तरफ हाजिरी। कुरान पाक की जो तरतीब है ना मौत व हयात की, पता किस तरह? अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो रब जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। कुरान जिंदगी का जिक्र बाद में करता है, मौत का जिक्र है। तो मुल्ला रूमी कहते हैं वो आदमी कहने लगा पहले दिखाओ ना कहाँ साल के बाद लेके जाओगे। तो उन्होंने जाके वो जगह दिखाई, इस जंगल में साल के बाद हमने आपको लेके आके छोड़ना है। तो कहने लगा खत्म हो गई बात, इसी जंगल में छोड़ोगे ना, कोई और तो नहीं? कहा इसी में छोड़ेंगे। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। पहला हुक्म तख्त पे बैठते उसने ये किया कि जंगल के अंदर जितनी खारदार झाड़ियाँ सारी काट दो। उस जंगल में जहाँ आखिर में जाना है वो सारी झाड़ियाँ काट दी। फिर कहने लगा जितने दरिंदे हैं ना जहाँ, वो सारे मार दो। दरिंदे मार दिए। कहने लगा अब हल चलाओ, क्यारियाँ बनाओ, फूल लगाओ, गुलाब लगाओ, चंबेली लगाओ, करो इसके अंदर खुशबुएं। वो सारा साल वो बाग की तैयारी करता रहा। साल के बाद उन्होंने चारपाई पे बांधा। जब उस बाग में लेके जा रहे थे तो पुराने बादशाह कहते थे ना नहीं मैंने नहीं जाना, छोड़ दो, उतार दो, माफ कर दो। ये पता क्या कह रहा था? कह रहा था अज्जलूनी, जरा जल्दी करो, जरा जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे ले जाओ खबर में और जल्दी से मुझे वहां छोड़ के आओ जंगल में। क्यों भला? इसलिए कि इसने फारिग बैठ के मौज नहीं की, इसने अपनी आखिरी जगह के फल पौधों की तैयारी की। ओ मेरे भाई, हमारे पास पैसा आता है तो गाड़ी नहीं आती है, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा बढ़ गया तो चलो वहाँ भी प्लाट ले लो। कोई बंदा भी अपनी आखिरत के लिए, कब्र हशर के लिए सोचने को तैयार। जितने मकान आपने बनाने हैं ना, बच्चों ने बाद में लड़ना है, उन्होंने कहना कारने वाला अब्बा मुझे कह गया था कार्नर वाला तेरा है। ने कहा था मुझे, अब्बा जी मुझे कह गए थे कि तू पहले बड़ा हो गया था, तू कमाई करने लग गया था, लिहाजा ये सारा तेरा ही है। वो सबको कोई ना कोई बात अब्बा कान में कह ही जाता है, सब ने अपने हिस्से की कोई ना कोई बात याद की होती। अब्बा ने कहाँ जाना है? जहाँ हालत बड़ी ख़राब है, जहाँ हालात बड़े पेचीदा हैं, मेहरबानी फरमाए वो जो तैयारी है ना आखिरत की, यहाँ रह के कब्र की तैयारी करें, यहाँ रह के वहाँ के कीड़े मकोड़े मारें, फिर वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो बंदा भाग के जाएगा, बंदा भाग के जाएगा। मैं सुनिया रात कब्र दी काली, तो फिर कहने लगे मैं ते भी सुनिया उथे उन्हें होना जिदे मोढे कमली काली। तो ये तो तब है ना कि जब आपने उसके लिए कुछ तैयारी की हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। ये तो है ना अजाब उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करने वाले हैं, ये उनकी कब्र का हाल बताया। तो सुनने तिरमिजी में, सही इब्न हिब्बान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुज़ूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है उठा के, बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है, बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था इनके बारे में दुनिया में। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं, मैंने तो कह देना है, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फिर मेरे अली शाह साहब कहते हैं मैंने वहाँ ये कहना है कि मुख चंद बदर शाशानी है ते मथ चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं न मद भरियां। सुबहान अल्लाह।
मां अजमला का, मां अकमला का, मां अक्सना का, ते किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में। वैसे भी एक सवाल लाजमी होता है ना, ये वाला सवाल लाजमी है। मन रब्बू का पूछ के ना तो जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं, माँ दीनू का पूछ के जन्नत जहन्नम का फैसला। हाँ, बात अगर खत्म होनी है तो मदीने वाले के सवाल पे खत्म होगी। इसलिए खुल के नाते पढ़ा करो, राज के दरूद पढ़ा करो, ये बात याद रखें। ये फैसला हुजूर की ज़ात पे ख़त्म होना है। मेरे ना वो शिकायतें करते हैं ना लोग आके, तो एक बच्ची को हमारे यहाँ दाखिल कराने के लिए एक साहब लेके आए, तो कहने लगे बड़ा अरसा इसे फलाने मदरसे में दाखिल कराया, सवाए नातों के कुछ भी नहीं सीखा इसने। तो मैं उन्होंने आख्या चाचा जी जी असल काम सी वो तो सीख गई है ना थोड़ी बच्ची। कुरान और सुन्नत भी हुजूर की नात ही है, लेकिन आपको पता है कि बात ख़त्म मदीने वाले की नात पे ही होती है। हुजूर का प्यार असल है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फरमाते हैं फिर उसे ना एक तरफ खिड़की खोली जाएगी तो जहन्नम का दरवाज़ा दिखाया जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू सवालों के सही जवाब ना देता तो दोज़ख में जाता, लेकिन अब तूने सही जवाब दिए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी। कितनी जी? मस्जिद में एसी वाले हाल में जगह मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है, और सुबह जाए बैंक और पहली लाइन में मौका मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है कि मेरा जाते ही काम हो गया। और खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र, मकान अच्छी सोसाइटी में अच्छा खस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा वारेदा लब गया, भाई बड़ा कमाल हो गया, मजा नहीं आ गया। कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी। और ये तिरमिजी शरीफ पढ़ रहा हूँ, बड़ी मजेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 70 गज लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज हैं हदीस के। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है उर्दू में भी है, पर मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं। वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा, वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है? कहता है मैं घर ना दस आवा जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के, ये जरा मैं अपने घर बताऊं भागे कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी। अपनी अम्मा ने दस आवा, अपनी अम्मा ने मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है, मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं घर ना दस आवा। कुर्बान जाएं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तू इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चले, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा। आप हुस्न देखे कलाम का और अंदाज देखे, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा। ते कब्र दे विच्चों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा कि देखो ना वो आ जाए हैं, वो आए हैं मेरे मज़ार पे, आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया। वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा, उसे कहा जाएगा तू सो जा, तू नींद पूरी कर, नींद पूरी कर। मेरे अजीज कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अज़ाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब भी नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के ही जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे जी ये क्या मामला है,
کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کتنے اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنیں سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان ہے، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو شخص، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تنگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی، اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں، اور ہمارے سلسلہ عالیہ